and 3x plus 2y minus 2z plus 15 equals to 0. Okay. Yes, sir. हाँ, तो अब बताइए क्या आंसर आया आपका? Sir, 7 units. गुड, क्या बात है। अच्छा देखो, डिस्टेंस निकालना था आपको यहाँ, है कि नहीं? Yes, sir. Point P was given as 382. You considered as P, and equation of line is also given x minus 1 by 2, y minus 3 by 2, z Sir, are minus you 2 by 2. writing something on the screen? Maths, Only math written, na? हाँ, Okay, मैथ्स ही sir. ओनली मैं राइट किया हूँ। Okay, sir. Okay. ठीक है, चलिए मैं अब धीरे धीरे राइट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इंडिपेंडेंटली करूँगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोग से ही पूछूंगा कि बेटा कैसे यहाँ से आगे प्रोसीड होना है। Surely, sir. Surely. ओके बेटा, it doesn't mean only matter is I'm not too much concerned regarding laptop, computer and electronic media also. Yes, sir. We can understand. That is why otherwise I can do everything, but I think that is not beneficial for us. That's why I'm a little bit far away from this the things. But Yes, sir. now it's our concern. That is why we have to. So equation of line is mm, X minus 1 by 2 equation of line is x minus 1 by 2, equal to y minus 3 by 4 y minus 3 by 4, equals z minus 2 by 3. z minus 2 by 3. And point is given here 382. Okay, Yes, sir. 382. And it's parallel to the plane 3x plus 2y minus 2 Parallel by. to the plane 3x plus 2y minus 2z plus 15. No, Equals equals to 0. 0. So question is that if P point is given and distance, it is another matter, but first of all we should find the direction ratio. Okay, here equation of plane and line is given, so any point on the line, suppose that is Q, P382 is given, but we have to find Q which is which lie on the line x minus 1 by 2, y minus 3 by 4 and z minus 2 by 3. But I don't have idea about the direction ratios. Okay, the plane, sorry, the line which is parallel to the plane, what is their direction ratio? I don't know. Okay, so for that, what we have to do? Equation of line. You can say equation of line. Equation of line 382. No? Passing through the point 382 and parallel to the plane and parallel to the plane is what? X minus 3 by a, because I don't have idea about its direction ratio. X minus 3 by a, y minus 8 by b equals to z minus 2 by c. Now reason is we have to find. Now if this one is the parallel, suppose this one is, I'm getting you a figure, it's a plane, okay, whose equation given, one line is given whose equation is x minus 1 by 2 equals to dash dash dash. Here it is written here, okay, it is written here. So equation of plane is given and the point P is here, P. Okay.
whose coordinate is 3, 8, 2, okay, and which is parallel to the plane, means like this. So, and the point it is considered as Q. So equation of PQ is what? X minus 3 by A, x minus 3 by A equals to y minus 8 by B equals to z minus 2 by C. Now if this one is parallel to the given plane, this one, then product of direction ratio will be, sum of product of direction ratio will be 0. तो नहीं, अगर ये इसके यस पैरेलल सर, है इसके इट मीन्स नॉर्मल के व्हाट? परपेंडिकुलर होगी। हाँ, तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप यही दे सकते हो कि इसका और इसका 3 into a, देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन इज 3, 2 and -2 and direction ratio of required line is a b c, so 3a plus 2b minus 2c equals to 0. Okay, 3a plus 2b minus 2c equals to 0, right? Consider यस it सर। as equation first. Okay, now see this one, line x minus 1 by 2, y minus 3 by 4 and z minus 2 by 3। 3 intersect the plane. Okay, and if this the line intersect the plane, it means what? It will satisfy the equation of plane. Okay, है कि नहीं? लाइन जो आपका गिवन है, ये आपका क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये निश्चित रूप से इसको सेटिस्फाई करेगा ही। और अगर ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोप्लेनर भी होंगे। और कोप्लेनर तो छोड़ो, आप इसके थ्रू क्या करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। क्योंकि देखो ये जो लाइन है, इसका मतलब हुआ, इसको अगर थोड़ा देर के लिए आप के कह देते हो, इसको अगर थोड़ा देर के लिए के कह देते हो, इसका मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से मिल गई, मिलेगी कि नहीं? और वो बिल्कुल सर। क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू जो मिल जाएगी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी बच्चे? तो यस बताओ सर, यस वो सर। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी। यस सर, और डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी निकाल डिस्टेंस लेंगे। बिटवीन पी क्यू आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं? सर उसके लिए तो फिर हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर हम डायरेक्टली सबसे पहले वही निकाल लेते, क्यू 2 लैम्डा प्लस 1 करके लैम्डा की फॉर्म में, हाँ हाँ जी, और वही तो फिर मैं कह रहा हूँ। और नहीं, फिर पी क्यू जो है ये हमारा ये ये इसी पी के क्यू डीआर जो है, निकाल लेते ये तो। पी क्यू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, ये क्या कह रहा है, ये ये प्लेन के पैरेलल है ना पैरेलल है। उसके। यस सर। तो आप परपेंडिकुलर होता तब आप डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ऐसे आपको सर क्या नहीं करना नहीं, होगा? मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। अच्छा, आप बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहले इक्वल टू लैम्डा लिख के एक्स वाई जेड निकाल लेते, हाँ निश्चित। और क्यू के पॉइंट्स यानी लैम्डा की फॉर्म में मिल गए हमें, तो हाँ पी क्यू के डी आर निकाल देते हम क्यू माइनस पी से, हाँ, डी आर निकाल सकते हो। और फिर और ये डी डायरेक्ट आर उनको और प्लेन इसके के लिए, डी हाँ आर से मल्टीप्लाई वो भी करके जीरो मेथड कर सही देंगे। है, वो भी कर सकते हो, क्या बात है, उससे भी जा यस सकते सर, हो। उसी से और आ गया था ऐसे भी क्यू 7। निकाल के तब आप करोगे तो भी निकाल सकते हो, जैसे आपको जाना हो जा सकते हो। यस सर। यही तो है, 3D में विशेष कुछ भी नहीं है, बस फ्री, आप विजुअलाइज जैसे ही कर लोगे तो लगेगा बहुत इजी है। अदर बॉयज, अदर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी, इट वुड बी प्रोड्यूस ए हेड। हेलो बच्चे, क्या इस हेलो क्वेश्चन को आगे मुझे बढ़ाना चाहिए? सर। हाँ बोलिए। सर इक्वेशन नंबर 1 जो है हाँ वो जी। कैसे आया, और एक बार दोबारा बता सकते हैं आप? थोड़ा सा ओहो, क्या मतलब बात है। है, नहीं कोई बात नहीं। देखो, ये आप लाइन समझ गए हो, ये जो रिक्वायर्ड जो आपको, ये देख रहे हो पी क्यू का इक्वेशन ये आएगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि पी क्यू जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं? यस सर। अगर ये प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के नॉर्मल के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि प्लेन का नॉर्मल जो होगा जस्ट लाइक, अगर मान लो ये पॉइंट मैं यहाँ डाला हूँ, तो पेन समझ लो कहाँ होगा,
पूरा पेन देखो, जैसे ये जो मैं टैब पेन यूज कर रहा हूँ, पेन क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर रहा होगा। जी सर। तो क्या है कि वो अगर इसके परपेंडिकुलर रहा है तो मतलब वो पी क्यू पर भी परपेंडिकुलर रहा है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए जब ये लाइन और ये पी क्यू एक दूसरे में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब प्लेन का देखो डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है, 3 2 -2, और इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिया है, तो बताओ 3 × A + 2 × B प्लस -2 × C = 0। समझ गए? ओके सर। ओके सर। ये एक इक्वेशन निकला। अब इसके बाद आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप Q का कोऑर्डिनेट निकालिए, क्योंकि Q जो है लाई कर रहा है इस लाइन पर, नहीं इस लाइन पर लाई कर रहा है आपका। यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल लीजिए, और जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी वो आपका Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, K चाहिए आपको, तो चूंकि ये लाइन जो है देख रहे हो इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप इसमें पुट कर दोगे तो K की वैल्यू मिल जाएगी, K की वैल्यू फिर से पुट कर दोगे तो Q मिल जाएगी, और पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। दूसरा, ये बच्चा जो अभी बात कर रहा था मेरे साथ, प्लीज आई वुड लाइक टू नो योर नेम, which will discuss about another method, please. सर ध्रुव है वो। Dhruv. सर ध्रुव। Okay. सर ध्रुव। Okay. So according to Dhruv, if you find out the direction ratio of PQ, means in terms of lambda you can find, in terms of K you can find the value of X, Y and Z. So you can find the direction ratio of PQ, and PQ is parallel to this the plane, then the product of direction ratios, the sum of product of direction ratios will be equal to 0. So you can find by this the method value of lambda, and after putting the value of lambda in the coordinate of Q, you will get point Q also. Yeah, and after getting Q, you will find the distance between them. बच्चे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। क्या इसको प्रोसीड करना चाहिए? अब तो हो गया सर। हाँ हो गया, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हो पा रहा है तो बताओ, मैं फिर से आगे बढ़ जाऊँ। अगर हो गया है तो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, क्या? हो गया सर। चलो ओके, हो गया तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी भी फिनिश हो जाए, सॉरी क्या बोलते हैं, 3D भी फिनिश हो जाता है। अब आपका काम है कि 3D का क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, और आइदर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो या फिर सामने सामने पूछ लो, सब चलेगा। सर आपका नंबर? नंबर व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ। ये है 8510960317। एक बार जरूर आप ये लिख देना कि मैं कैलविन से हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको जान नहीं रहा हूँ बच्चों, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दूंगा, कहीं कोई डाउट होता है तो, ठीक है। सर योर गुड नेम प्लीज? आर के सिंह, राहुल कुमार सिंह। ओके, मैथ्स इंजीनियर राहुल कुमार सिंह कर सकते हो। मैं लिखता नहीं हूँ इसलिए कि क्या जरूरत है लिखने की। मेरा IITian होके टीचर बन गया है, इसलिए मैं ये सब लिखता नहीं हूँ।
ठीक है बच्चे, ये मैकेनिकल है मेरा। ठीक है सर। और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। नो सर। तो मुझे समझ में ये नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो आपको अच्छा समझा ले, चाहे मैट्रिक फेल हो वो ज्यादा अच्छा है, भले कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो वो कर दे, है कि नहीं। जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए, जिसके ट्यून जिसके साथ आपको बन जाए, वो मैं समझता हूँ ग्रेट है। यहाँ ये काम नहीं आता है कि आप कहाँ से हो क्या हो, क्योंकि आईटी से होने के बाद हम लोगों को जाना चाहिए था बहुत बड़े बड़े फील्ड में, गया लेकिन लौट के आ गया, फिर से टीचिंग फील्ड आ गया, वो अलग बात है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन यही है कि मैं इसको मिटा देता हूँ इसलिए कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ। सर टीचिंग भी बहुत नोबल प्रोफेशन है सर। है, लेकिन जानते हो ये जो मजा आया था ना रिलायंस जामनगर गुजरात में जब मैं था, उस समय जो मजा आया था, लेकिन वही है कि जब आपके कारनामों को कोई दूसरा लोग छीन लेता है तो आपको कैसे फील होता है। आप कोई चीज इन्वेंट करते हो और आपका सीनियर कहा नहीं मैंने ये चीज किया, वहां पर थोड़ा सा हो गया, बुरा लगा था। समझे कि नहीं। अदरवाइज नॉवल क्या, अरे इस बार भी जानते हो 65th रैंक दिया हूँ मैं, 65th रैंक। अलीगढ़ का बच्चा है अश्विनी शाश्वत, देख लेना आप। ऑल इंडिया 65th रैंक आईआईटी में इस बार आया है मेरे बच्चे का। मैथ्स में 115 मार्क्स। ओ 115। तो बताओ ना, 115 कम होता है। बहुत ज्यादा लेकिन होता है हमारे लिए, तो हमारे तो टोटली उतने आते हैं। नहीं नहीं, उसका मैथ्स नहीं था। और जानते हो वो बच्चा, मैं क्या बताऊं, इतना नॉबल बच्चा ही मैंने देखा अपने लाइफ में। मतलब कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। बस उसको जब डाउट होता था, सर डाउट ये बता दो, डाउट के दौरान बहुत डिस्कस करता था। ये था, अगर उसको समझ में आ गई तो एक लाइन नहीं बोलता था, नहीं समझ में आए तब तो पागल बना देता था। उसको समझ में आना चाहिए, ये था। इसीलिए हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम थोड़ी करते हैं, वो तो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ने वाला है वही निकाल सकता है। हम किसी को भी आईआईटीएन नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। यस आप सर। अगर मेहनत करोगे तभी आप बन सकते हो। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा पुशअप कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर टीचर में वो एबिलिटी होती तो सारे बच्चे जो उनसे पढ़ते हैं वो सारे क्यों नहीं निकल जाते, बताओ। इसलिए रैंक पर तो मैं जाता भी नहीं हूँ, बस अपना देख लेता हूँ कि बच्चे मैथ्स में कैसा। मैथ्स में ही आपका मार्क्स जो आया वो आपके 80% मेहनत के कारण आया है, मेरा मात्र 20% उसमें है, इजंट इट। यस। तो इसलिए आप जितना मेहनत करोगे आप ऊपर जाओगे। बस आप नाम ले लेते हो एक बार मेरा, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है कि उनसे पढ़ा था मैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़े हम। हेलो। यस सर। चलो आज बहुत एक्स्ट्रा बात हो गई, अब पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि नया चैप्टर शुरू होना है इसलिए मैं आपसे कुछ बात कर लिया। नया चैप्टर जो है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी 11th का आप लोग पढ़े हो कि नहीं। पढ़ा है सर। नहीं, अक्सर ऐसा होता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उस स्थिति में क्या होता है कि वो 11th का नहीं पढ़ते हैं, और हम जैसे लोग बता देते हैं कि इसको 12 में एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं आपको शुरू से रिवाइज कर दूं कि 12 से रिवाइज करूं। सर शुरू से कर दो सर। चलो ओके, यही मैं जानना चाह रहा था इसलिए मैं पूछा।
देखो प्रोबेबिलिटी जो है शुरुआत तो वो नाइन्थ क्लास में प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और प्रोबेबिलिटी मतलब है वही फोरकास्टिंग, एक आप अनुमान लगाते हो कि ऐसा हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, रेशियो वाइज आप देखते हो। और चूंकि रेशियो वाइज देखते हो तो रेशियो तो आप जानते हो हमेशा 0 और 1 के बीच ही होता है कि नहीं? आप जो पार्शियल सॉरी क्या बोलते हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ते हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 के बीच होता है। ठीक उसी तरह से प्रोबेबिलिटी भी आपका क्या है, वो मिनिमम होगा तो 0 होगा और मैक्सिमम होगा तो 1, क्योंकि ये हमेशा एक रेशियो बताता है, एंड दैट रेशियो मस्ट बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब इसीलिए कहा गया है P of E lies between 0 and 1। Okay? If P of E equals to 0, event is sure, event is impossible, sorry. And if P of E equals to 1, event is sure. Okay? मेनली इसमें है क्या, 11th में जो बताया गया है, 9th में आपको सिंपल इवेंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, 9th में जो आप पढ़े थे वो सिंपल इवेंट के बारे में, जिसमें क्या है कि एक इवेंट परफॉर्म हो रहा है, उसके थ्रू क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे एक डाई को थ्रू कर दिया गया है तो क्या होगा, सैंपल स्पेस ये मतलब प्रोबेबिलिटी ये सब आने की है, तो इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस इसके बारे में डिस्कस हुआ। जब आप 10th क्लास में आए, इसमें दो दो इवेंट को लेना शुरू किया गया, कंपाउंड इवेंट। मीन्स अगर 6 किसी बच्चे को आ सकता है तो कितने बच्चे को आ सकता है, या मान लो इवन आने की प्रोबेबिलिटी या ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो 10th क्लास का जो था, जैसे वीकली आप देखते हो कि there is a leap year this year is a leap year, and what is the probability that last 2 days is of either Sunday or Monday. Such type of events are said to be compound event. Okay, and when you come in 11th class, you studied about how to find sample space from compound event. How to find the sample space, how to find the sample space from compound event एज फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मान लो एक कॉइन को टॉस किया गया, मान लो ये कॉइन है, ठीक है, तो टॉस किया जाएगा तो इधर हेड होगा या फिर टेल होगा, है कि नहीं? अब हेड आया तो फिर से आपने क्या किया कि एक कॉइन को ही टॉस किया, कॉइन, इससे फिर एज ए रिजल्ट आया क्या, हेड आया या फिर टेल आया। और जब आप टेल लिए हो तो इसके थ्रू फिर से क्या आया, एक डाई को आपने थ्रू कर दिया, डाई को आपने थ्रू किया और एज ए रिजल्ट ये क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपसे पूछा गया सैंपल स्पेस एस इक्वल टू क्या होगा, आप देखोगे एलएचएस पार्ट में क्या देख रहे हो, एच एच आ रहा है, फिर एच टी आ रहा है। ठीक है, एच एच और एच टी आ गया। जब आप इस पार्ट में जाते हो तो आपको मिलता है T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ठीक है बच्चे, तो कंपाउंड इवेंट के केस में इस तरीके से सैंपल स्पेस निकाला जाता है। अब अगर इसको वैल्यू वाइज देखना चाहते हो तो वैल्यू वाइज आप देख सकते हो, मैं आगे बढ़ूं तो आपको समझा पाऊंगा।
हेलो हेलो, Yes, sir. सुन रहे हो? ये हाँ सर। सर. चलिए तो मैं इस पेज को आगे बढ़ाऊं। यस सर। हाँ सर. ओके, अब देखो इसी चीज को अगर मान लो हम डेली लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करें तो एक एक की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये हमारे ग्रैंडपा है कि नहीं, ये ग्रैंडपा मतलब क्या हो गया 1, और इनसे क्या हुआ, 2 सन आए, एक हमारे अंकल आ गए और दूसरे हमारे फादर आ गए। ठीक है, अब अंकल जो है इनके 2 सन थे, एक B1 एक B2, और जो हमारे फादर थे इनसे 5 सन आए। अब मान लो तो B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है बच्चे। तो कहा जाएगा पर्टिकुलर कितना शेयर सबको मिलेगा। प्रोबेबिलिटी जो निकाला जाता है शेयरिंग के हिसाब से ही निकाला जाता है, इसलिए मैं ये एग्जांपल आपके सामने लिया। अब बताओ जब ये 1 था तो अंकल और फादर में डिवाइड हुआ। अभी जो एग्जांपल में थोड़ी देर पहले कॉइन और डाइस का लिया था उसी को बेस्ट में ये लिया, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब बताओ B1 की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर यहाँ निकालना हो तो, है कि नहीं? थोड़ा सा आपका सर कॉन्सेप्ट। एक जगह 1/2, एक जगह 1/5। क्या बात है, यहाँ पर तो क्या है, अब जैसे सैंपल स्पेस के थ्रू देखते हो आप तो ये चीज नहीं आप देख पाते हो, इसीलिए मैं ये एग्जांपल लिया हूँ। अगर B1 का निकालो तो देखो ये ऑलरेडी 1/2 हो गया और ये भी आपका 1/2 हो गया। अब ये 1/2 में फिर से डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं? तो बताओ इस Bn का जो शेयर बनेगा वो क्या बनेगा? 1/2 इंटू 1/2। 1/4 बनेगा। और यस सर। इसका शेयर क्या बनेगा? 1/10। 1/10। 1/2। हाँ बिल्कुल सही, 1/10। इसीलिए है सारे के सारे, अगर सैंपल स्पेस की बात करो तो यही मिलेगा, UB1 UB2 FB1 FB2 FB3 FB4 FB5, बट शेयर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द शेयर फॉर B1। ये चीज है कंपाउंड इवेंट, और इसी कंपाउंड इवेंट के अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए अगला अगला टर्म है, सारे टर्म पहले लिखता हूँ, सारे टर्म आप समझ जाओ, उसके बाद जैसे जो कॉमन टर्म है वो तो आप जानते हो, जैसे है डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है बच्चे, क्या होता है डिसजॉइंट इवेंट, बता सकते हो? Whose elements does not match, नहीं, whose और intersection is 0। इंटरसेक्शन। टू, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर इंटरसेक्शन Intersection is 0। 5। Null हाँ, set। और 2 or more events if A intersection B और intersection C इक्वल्स टू क्या हो जाए, 5 को 5 हो जाए, intersection C इक्वल्स टू 0। देखो डिसजॉइंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लगभग सेम हो जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये भी यही चीज है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में क्या कहोगे? 2 or more events एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझते हो, जो भी आप परफॉर्म करते हो दैट इज एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? which is said to be impossible event also because म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का केस में भी यही आ रहा है। अगर A इंटरसेक्शन B 5 हो जाता है तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में B इंटरसेक्शन C 0 हो गया, तो बताओ
अगर दोनों तरफ हम नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा, है कि नहीं? विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of any event is if 0, that is then you can say it is impossible event. Okay, है कि नहीं बच्चों? ये क्या कर लाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट कर लाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो या डिसजॉइंट इवेंट हो, दोनों के दोनों एक ही चीज है। सेट थ्योरी वाइज ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी वाइज ही सेम होता है। ठीक है? हेलो, यस सर। आगे बढ़े? जी सर। चलिए देखिए, आगे बताया गया एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, इसमें क्या बताएगा कि फॉर 2 और मोर इवेंट्स एज ए सेट, if their union is equals to sample space, then that events are said to be exhaustive event. ठीक है? For 2 or more events, for 2 or more events associated with a random experiment, the union of, if the union of those events is equal to the sample space, okay, then events are said to be exhaustive. Then events are said to be exhausted. ठीक है बच्चे? ऐसे केसेस को एग्जॉस्टिव, अब देखो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये मान लो क्या है? सैंपल स्पेस। इसको हम सेट ए कर दिए, इसको हम सेट बी कर दिए। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और ए यूनियन बी निकालो तो क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस मीन्स A and B are mutually exclusive and exhaustive. And बस समझा रहे बच्चे? ये है। यस सर। अब आपको ये तो पता ही है कि P of A plus P of A dash इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। कैसे? क्योंकि A और A डैश जो है, A और A डैश जो इवेंट्स हैं, ए को आप कह रहे हो प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंट ऑफ ए, प्रेजेंस ऑफ ए, और ए डैश को कह रहे हो नॉट प्रेजेंस ऑफ, मींस एब्सेंस ऑफ ए, है कि नहीं? ये कहते हो कि नहीं? तो मतलब क्या है कि ए प्लस नॉट ए, इसको मिला के आप कहते हो ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट इन केस ऑफ सेट थ्योरी। ओके, इसका मतलब ये भी हुआ कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए डैश, है कि नहीं, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ यू के बराबर होंगे। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। और नंबर ऑफ यू जो होगा वो नंबर ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ यू जो होगा वो नंबर ऑफ एस के बराबर होगा। तो अगर हम इसको नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें हर तरफ तो क्या मिलेगा? मूल्य
आपको यही मिल जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश को ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 1, ठीक है। बट ए एंड ए डैश आर डिसजॉइंट इवेंट्स, ए एंड ए डैश आर mutually exclusive events। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। Yes, तो sir. चलिए, अब देखिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा आपको, थोड़ा बहुत तो 11th की चीजें हैं ये, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। हेलो, हाँ बच्चे बोलो, कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, मेनली है क्या कि आप थोड़ा सा, आपको इसमें मैं आपको जनरल चीजें जो 11th में अक्सर पूछी जाती है, जे मेन में भी पूछी जाती है, पता नहीं चलता है कि 11th का पोर्शन है कि 10th का पोर्शन है, तो उस तरह की चीजें अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें। तो क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलता है, तो हम लोग धीरे 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 पहुंचेंगे उस जगह पर। देखो कैसे यूज करेंगे हम पीएनसी का, कैसे हम पूरे पीएनसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करेंगे, सारा चीज आएगा आपको प्रोबेबिलिटी में। पहला क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जो अब इतना तो जान ही गए हो कि नंबर पी ऑफ ई इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस, है कि नहीं? पी ऑफ ई डैश जो होता है मतलब नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई, है कि नहीं? इस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, देखता हूँ मतलब क्या आंसर देता हूँ। फ्रॉम ए सेट ऑफ 17 कार्ड्स, फ्रॉम ए सेट ऑफ 17 कार्ड्स, नंबर दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 17, ठीक है। one is drawn at random, okay। Find the probability that numbers on the drawn card, that numbers on the drawn card be divisible by divisible by 3 or 7, just try it। सेवन बाय 17। हम्म, 7 by 17। गुड, सही है। देखो बच्चे, बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस सर 7/17। नो सर। हाँ, नंबर ऑफ एस आपका 17 है, नंबर ऑफ ए आपका 5 है, इसलिए कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 3 4 3 6 9 15, 3 5 जब 15 होता है इसलिए आप 5 कर दोगे। नंबर ऑफ बी आपका 7 2 जब 14 होता है तो 2 हो जाएगा। तो बताओ, पी ऑफ ए एंड बी, चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि जो 3 से डिवाइड होगा वो 7 से नहीं हो सकता, जो 7 से होगा वो 3 से नहीं हो सकता है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। सो आप लिख सकते हो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एस ये है, सबको डिवाइड करके निकाल सकते हो।
नंबर ऑफ ए यूनियन बी तो निकाल ही दोगे। पी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जब एस ये हो गया है, ए यूनियन बी हो गया 5+2/7/17, डायरेक्ट निकल गया 5/17 + 2/17, मतलब 7/, सॉरी ये 0 है बच्चे, 7/17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है question is 6 boy and 6 girls. 6 girls sit in a row randomly. Sit in a row randomly. Find the probability. Find the probability that all the 6 girls, all the 6 girls sit together. Sit together. Please find it. 7 factorial by 12 factorial. बिल्कुल wrong. Seven factorial into 6 factorial divided by 12 factorial. Good. 6 factorial छूट गया. It's right. Yes sir, See. 7 factorial upon 12 factorial into 6 factorial. हाँ, into 6 factorial you didn't perhaps are told. सर वो गर्ल्स को अलाइक मान लिया था ना, इसलिए 6 फैक्टोरियल नहीं लिखा होगा। हाँ, अलाइक मतलब आइडेंटिकल तो नहीं होगी गर्ल्स, नहीं सर, इसलिए वो भी तो खुद में अरेंज होगी। नहीं, वो गर्ल्स के अरेंजमेंट वाला फैक्टर कंसीडर नहीं किया था, इसलिए 6 हाँ, फैक्टोरियल पहले मल्टीप्लाई वही नहीं वही किया, बाद में वही कर यही तो दिया मैं था. बोल रहा हूँ। ये यहाँ सर आंसर वही लिखिए। आंसर। हाँ जी, नंबर ऑफ एस आप डायरेक्ट का हो गए, नंबर ऑफ एस आपका क्या हो गया 12 नहीं 12 जगह है और 12 मेंबर्स है, तो इनको बैठने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 12। नंबर ऑफ ई आपका पता ही चल गया क्या है। आप 6 को सिंगल कंसीडर किए तो 6 + 1 7 हो गया, और इनके अरेंजमेंट का तरीका फैक्टोरियल 7, ये 7 पे 7 कर सकते हो। और ये जो बचे हुए गर्ल्स हैं क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है तो ये खुद में बैठ सकते हैं फैक्टोरियल 6 तरीके से, इसलिए पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 12। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ट्वेल्व बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो मैं बस इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको कि किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करेंगे पीएनसी को प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। ठीक है बच्चे,
अब जिस लेवल का पीएनसी है उस लेवल का क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी का भी, ये याद रखना। तो 12 balls are distributed among 3 boxes. 3 boxes. Find the probability that the first box will contain the ball. सर इसका होगा 12C3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 12। गुड, सही है। चलिए, मतलब आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब जानकारी है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सर वेट सर, अभी मैं कर रहा हूँ। चलिए कीजिए। अक्सर होता क्या है 12 में जब आ जाते हैं तो 11 का लोग भूलने लगते हैं, इसलिए मैं आपका पहले वो चेक कर रहा था। और ये सब चीज पार्ट ऑफ 11th प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो इसी में बहुत सारे लोग क्या होते हैं करते हैं, ये 2015 में पूछा हुआ है, ये 2010 में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा आपको कभी भी। क्वेश्चन को क्वेश्चन ही समझना है, चाहे कभी भी पूछा हो गया हो, कहीं पूछा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। मेरे से सॉल्व हो गया तो इजी है, नहीं सॉल्व हुआ तो टफ है। तो कैसे होगा ये वाला? हम्म, कैसे होगा ये वाला फिर देखो 12 balls are distributed, क्या लिखा है 12 balls are distributed। इसका मतलब है 3 बॉक्स में, मान लो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स। इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, किसी में भी कोई भी बॉल डाल सकते हो, है कि नहीं? तो एक बॉल को भरने का कितना तरीका हो गया, 12 फैक्टोरियल है कि नहीं? 12 फैक्टोरियल क्यों होगा? सर 3 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल का रहा है, सर फिर कितना होगा? तो यही तो सोचना है। 3 रेज टू पावर 12 होगा। एक बॉल को आप तीन ही तरीके से ना भर सकते हो, चाहे इसमें डालोगे या फिर इसमें डालोगे या फिर इसमें डालोगे। यस सर। एक बॉल का तरीका हो गया 3, तो बताओ 12 बॉल का कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं? समझ रहे हो? तो यहाँ से नंबर ऑफ एस आपको क्या मिल गया, 3 टू द पावर 12। नहीं सर समझा 3 टू पावर 12 कैसे आया? यार एक बॉल है, उसको आप चॉइस है आपके पास ना, आप किसी भी, अब जैसे कहते हो, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि 2 डाइस को थ्रो किया गया, आप सिंपल स्पेस क्या कहते हो, 6 into 6 कहते हो कि नहीं? यस सर। क्यों? मान लो इस बॉल पर नंबरिंग आप तो किए नहीं हो, नंबरिंग कर भी देते हो तो क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 अगर उस डाइस पर लिखा है तब क्यों कहते हो 6 into 6? क्योंकि 2 डाई को थ्रो किए हो,
क्या रीडिंग किस पर आएगा नहीं पता है। ठीक उसी तरह से 12 बॉल डिफरेंट बॉल अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 बॉक्सेस में, तो पहला बॉल किस बॉक्स में जाएगा आप जानते हो, दूसरा बॉल किस बॉक्स में जाएगा ये जानते हो आप? नो यहाँ सर। रिपीटेशन इज अलाउड, ये जो केस है ओके यहाँ सर। रिपीटेशन इज अलाउड। मतलब हो सकता है 12 के 12 बॉल एक ही बॉक्स में आ जाए। सिंपल स्पेस का मतलब तो यही हुआ ना कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, तो वहां तो आपको रिपीटेशन अलाउड ही लेना पड़ता है। यस सर। अब ये कह रहा है कि दैट फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन 3 बॉल्स, तो जो 12 बॉल है उसी में से तो 3 बॉल ये लेगा, है कि नहीं? यस सर। The probability of getting 3 balls, the probability of getting 3 balls equals to क्या हो जाएगा 12C3, 12C3। आउट ऑफ 12 यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 3, तो पहले बॉक्स का तो काम हो गया। अब बचा ये 2 बॉक्स, ठीक है। अब इसके लिए बॉल कितने हैं, 9 दो। बॉल बचे हैं, 9 बॉल्स 2 बॉक्सेस। 2 बॉक्स है। तो फिर यहाँ भी तो आप ये नहीं कर सकते, 9 के 9 इसमें भी जा सकते हैं और 9 के 9 इसमें भी जा सकते हैं, है कि नहीं? यस देन सर। आप कर सकते हो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 9 balls in remaining 2 boxes, remaining 2 boxes इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 to the power 9, है कि नहीं? यस सर। P of E इक्वल्स टू क्लियर हो गया 2 to the power 9 into 12C3 by 3 to the power 12। क्लियर? ओके सर। चलिए एक आध और मैं आपको पहले इजी क्वेश्चन देता हूँ, फिर आपको मजेदार दूंगा। ओके सर। क्योंकि ये जानते हो आप जे मेन में देखोगे तो अक्सर आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपके 12 में दिया है या 12 बेस्ड दिया है, वो कुछ ऐसा पूछेगा जो लगेगा आपको अरे ये तो मैं कर सकता था लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए क्वेश्चन, देखो बगल में भी कोई पढ़ रहा है, कोई जी आवाज आ रही है। कह रहा है फ्रॉम ए बैग containing 5 white, स्पेलिंग देख लेना बच्चे। 5 white, 7 red, and 4 black, and 4 black balls. A man draws 3 ball at random. 3 ball at random. Find the probability of being. Find the probability of being all white. Please solve it. बच्चे एक मिनट में आया।
चार्ज में लगा के कुछ देखते हैं तो लॉग इन नहीं हो रहा है। सर 5C3 by 16C3. हाँ बच्चे आया। सर 5C3 by 16C3. बिल्कुल Five सही, C- गुड। गुड, सही है। देखो यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 5 व्हाइट है, 7 रेड है, 4 ब्लैक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या हो गया? 16 ही तो होगा, 7 + 5 + 4 है कि नहीं? और उसमें से कह रहा है कि एक आदमी जो है 3 बॉल एक रैंडम ड्रॉ करता है, जिसका मतलब है इट मींस नंबर ऑफ S = 16C3। 16C3. बस। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल व्हाइट। तो देखो व्हाइट बॉल कितने हैं? 5 5. व्हाइट बॉल है। उसमें से 3 इसका सिलेक्ट कर मतलब हो लेंगे. गया कि नंबर ऑफ ई जो हो गया उसमें से 3 ही तो सिलेक्ट होगा, तो 5C3। तो बताओ ई ऑफ ई क्या हो गया? 5C3 by 16C3। इसको सॉल्व भी आप कर सकते थे, जो भी आएगा आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? यस सर. चलिए अब एक आध ढंग का क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखिए क्वेश्चन। A die is rolled thrice. A die is rolled thrice. ठीक है। Find the probability of getting a larger number each time the previous number, then each time then the previous number. अगेन आप सुन लीजिए। Die is rolled thrice. Find the probability of getting a larger number each times than a previous number. सर 6 factorial, 5 factorial, 4 factorial by 216. 6 factorial, 5 factorial नहीं समझ में आया मुझे। 6 factorial into 5 factorial into 4 factorial divided by 216. गलत हो गया बच्चे।
सर 120/216. हम्म, सर 6C1 into 5C1 into 4C1/216 6C1 into 5C1 हम्म into 4C1 divided by 216. ना, ये भी गलत होगा। तो मतलब वही हो गया ना, 120 तो बोल रहे हो सर 180 divided by 216. ना, ये भी गलत है बेटा। ध्यान से सुन, ध्यान से सोचो इस बारे में। देखो सेकंड नंबर जो आप लोगे इसमें वो 2 से छोटा तो होगा नहीं। क्या सर? दो नंबर देखो, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सर फाइंड द 1/18. प्रोबेबिलिटी ऑफ। हाँ बोलिए। सर 1/18 है आंसर. ना, ये भी नहीं है। सर क्या कह रहे थे अभी आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। ये बताइए, जो सेकेंड नंबर होगा वो हमेशा 2 से तो बड़ा ही 2 होगा, 1 तो हो नहीं सकता सर है। 40/216. ओहो, थोड़ा सा और कम कर दो तो हो जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा एक्यूरेसी कम. समझ गए? मान लो सेकेंड नंबर आप कुछ भी कंसीडर, ए कंसीडर करते हो, और फर्स्ट नंबर वैसे ही हो जाएगा आई माइनस ए, सॉरी क्या बोलते हो, 6 माइनस ए हो जाएगा, कि डाय में तो 6 ही तो है टोटल। जी सर. तो वो ए जो लोगे वो तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, तभी तो आपको डिफरेंस मिलेगा, ये है कि 1 नहीं? के इक्वल भी तो हो सकता है. 1 के इक्वल तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, ईच टाइम फर्स्ट बी ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, है कि नहीं? वो 2 से छोटा नहीं हो सकता है, सेकेंड नंबर जो है वो 2 से छोटा नहीं हो सकता है। हाँ जी सर, वो ठीक तो है? है ही. और फर्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा, a माइनस 1 वे से सिलेक्ट होगा। सर समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे नहीं हो. समझे? मैं इस क्वेश्चन में इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ एस तो क्लियर है, नंबर ऑफ एस आपका क्या है यहाँ क्लियर है। आंसर आप अगर लिखते हैं यहाँ, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 क्यूब मतलब 216, ये क्लियर है। अब नंबर ऑफ ई की बात आप कीजिए, नंबर ऑफ ई में क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर को हमेशा 1 से ग्रेटर होना पड़ेगा ताकि डिफरेंस 0 ना आए, क्योंकि इक्वल की बात है ही नहीं यहाँ। क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। लार्जर नंबर जो है वो क्या है, ग्रेटर नंबर है कि नहीं? Yes. मतलब वो तो 2 से कम नहीं हो सकता है। तो मान लो लार्जर नंबर को अगर हम थोड़ा देर के लिए, लार्जर नंबर को अगर हम थोड़ा देर के लिए हम कह दे आई, लेट, ठीक है? तो बताओ स्मॉलर नंबर क्या हो सकता है? 6 minus I. 6 माइनस आई। स्मॉलर नंबर जो होगा ये हो जाएगा, यार ये क्या लिखा रहा है, 6 माइनस आई। अब क्या है कि आई के केस में मतलब क्या है, ये जो होगा सारा चीज हो सकता है। आई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। जबकि स्मॉलर नंबर जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन वो भी 6 नहीं होगा, है कि नहीं? Yes मेरी sir. बात समझ रहा हूँ? तो मतलब क्या है, ये दोनों नंबर लेने होने होने चाहिए। तो मतलब क्या है, आप इसका प्रोडक्ट लोगे तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आई की वैल्यू 2 से शुरू हो जाएगी, आई इक्वल टू
2 और सर आई इसका 2 से क्यों शुरू हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। यही तो सोचना है। अच्छा, लार्जर नंबर आई जब हमेशा लार्जर नंबर कर रहे हो 1 तो से ग्रेटर ही होगा। वही तो 1 से ग्रेटर क्या लोगे आप? 2। और ये देखो सेकंड नंबर में आई आप कहाँ तक जा सकते हो? 5 तक ही जा सकते हो ना। स्मॉलर यस नंबर सर। 1 से छोटा तो नहीं हो सकता है, इसलिए आई इक्वल टू 2 to 5 आप ले लेते हो। क्या हो गया? आई माइनस 1, आई माइनस 1, 2 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 6 माइनस 1, है कि नहीं? 6 तो है ही नहीं। 6 तो है ही नहीं, 6 को लेना भी नहीं है। 6 को क्यों लेंगे हम? क्योंकि दूसरा पार्ट भी तो आप देखोगे 6 माइनस आई। बस समझ में आ रही है? अगर ये सर एक आवाज कट रही नंबर, हेलो, है। हेलो। अब आवाज आई? हाँ सर अब ठीक है। चलिए ओके। अब ये देखिए आई माइनस 1 टू 6 माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक कीजिए तो आपको पता चलता। ओ सॉरी, सर ये कैसे आया, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ओ बाप रे बाप, मैं आपसे बोल दिया आई की वैल्यू 2 से छोटा आप नहीं है। ये तो आ गई समझ में बात। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले रहे हो, क्या है? गेटिंग देन प्रीवियस नंबर, मतलब आपका क्या है? अगर इसको 3 टाइम्स आप ये कर रहे हो, 3 टाइम्स अगर आप कर रहे हो तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम में आई माइनस 1 आया, दूसरे टाइम में ये सिर्फ 1 आएगा, और तीसरे टाइम में 6 माइनस आई के रूप में लेगा। नहीं समझे? आप ये तो देख रहे हो कि सेकेंड नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन यूनिटी, मीन्स फर्स्ट नंबर कैन बी chosen in how many methods? I minus 1 methods. First number can be chosen how many methods? Please tell me. फर्स्ट नंबर जो आप चूज करोगे वो कितने मेथड से चूज करोगे? अगर 6 आई फैक्टोरियल। 2 होता है तो अच्छा 4 5 फैक्टोरियल। हाँ, इसका हाँ 5 फैक्टोरियल बिल्कुल। तो मतलब अगर आप आई के टर्म में लेते हो तो ये आई माइनस 1 ही तो हो गया। अरे 6 माइनस 1 क्या होगा? 5 ही तो होगा। यस सर। ये 1 सर है। सेकंड नंबर 1 के लिए आपने। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि फर्स्ट जो है चूज हुआ आपका आई माइनस 1 से। अब पहले थर्ड को सोच लो, ठीक है। सेकंड देखो, इसका और इसका मैटर है। सेकंड तो बेचारा न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है, इस जगह पर आप कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते क्या है कि लार्जर और स्मॉलर की बात यहाँ हो रही है। जो इन दोनों से बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सर यहाँ जो बात हो रही है लार्जर और स्मॉलर की हो रही है, और वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 के बीच। नहीं समझा भी? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पहला नंबर आई माइनस 1 मैथड से चूज हुआ, ये पता चला। सर आई को हमने लार्जेस्ट नंबर माना है, क्या माना है? लार्जर नंबर क्या होता है ये? देखो ये तो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, लार्जर नंबर लिखा है तो मैं लार्जर नंबर आई को कह दिया। क्वेश्चन यहाँ देखो, फिर से सोच, मैं फिर से इसको डिक्टेट कर रहा हूँ आपको। कह रहा है क्वेश्चन की डाइस रोल 3 टाइम्स थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए लार्जर नंबर ईच टाइम देन प्रीवियस नंबर्स। अब देखो एक डाई को आप थ्रो कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही ना। लेकिन एक डाई को अगर 3 बार आप थ्रो कर रहे हो तो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, आएंगे कि नहीं? लेकिन उसमें ये कह रहा है हर एक बार क्या होना चाहिए, हर एक बार क्या होना चाहिए कि लार्जर नंबर जो होना चाहिए वो लास्ट के नंबर, मतलब जो 3 टाइम्स आप थ्रो कर रहे हो उसमें फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट जो डाई का डिजिट है
फर्स्ट जो डाई का रीडिंग है वो थर्ड डाई के से ग्रेटर होना चाहिए, वो थर्ड डाई से ग्रेटर होना चाहिए। अब कुछ क्लियर हुआ मेरी बात? थर्ड डाई से ग्रेटर क्यों होना चाहिए सर? मेरी बात सुनो सर एक बार आप नंबर्स जैसे लेके मैं- बता दो। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 बार ये यहाँ ये हुआ है, 3 बार हुआ है। फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, थ्रो किया, सॉरी एक डाई को 3 बार थ्रो किया, तो रिजल्ट आया 1 आया, 2 आया, 6 आया मान लो। ओके सर। एक डाई को 3 बार आपने थ्रो किया तो रिजल्ट जो आया है 1, 2 और 6 आया है। ठीक है सर। अब इसमें कह रहा है कि गेटिंग ए लार्जर नंबर ईच टाइम, मतलब हर एक बार देन द प्रीवियस नंबर। अब सेकेंड टाइम फिर आपको थ्रो करना। अब देखो एक ही डाई को ना आप 3 बार रोल किया हो, यस सर। एक डाई को आपने 3 टाइम्स रोल किया। अब अगर ये आ सकता है तो दूसरा ये भी तो आ सकता है 2, 1, 3। नहीं सर ये कैसे आ जाएगा? अब बीच में 1 आ गया तो 1 तो 2 से छोटा है। यहाँ ये तो नहीं 20 कह रहा by है कि बीच वाला क्या 216 होगा। है। व्हाट? 20 by 216। 40/9, 20/216 है आंसर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 20 by 216। हाँ, ये सर आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि एक डाई को आपने 3 टाइम्स रोल किया है कर दिया सर। तो आपका रिजल्ट मान लो इस तरह से आया। अब ओके सर। क्वेश्चन में क्या है, आपको ये देखना है कि हमेशा क्या होना चाहिए, लार्जर नंबर ईच टाइम देन द प्रीवियस नंबर। सर इस टर्म का मीनिंग क्या है? लार्जर नंबर ग्रेटर देन प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर कौन से हैं? क्योंकि जो आपने अरे यार, सेकंड लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो 1 है 1 की प्लेस लेफ्ट में होनी चाहिए तभी ये सेटिस्फाई करेगा। नहीं ये थोड़ा सा मैं ये कुछ भी ले लिया था, इसके लिए बारे में मत सोचो। मेरा मतलब ये है कि जैसे आप ये थ्रो किए ना तो रोल हुआ 1, 2, 6 जैसे आया, तो क्या है कि 6 जो है मतलब यहाँ जो आएगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, प्रीवियस 2 से ग्रेटर होना चाहिए। यस ये सर। जो होगा ये सबसे स्मॉलर होना चाहिए। यस सर। ये क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन जो मिडल है वो स्मॉलर वाले से बड़ा तो होना ही चाहिए। तो बड़ा ये हो जाए, लेकिन मतलब है बस प्रीवियस और लार्जर में, ठीक है। इस दोनों के बीच का कंपटीशन है, बीच के बारे में कुछ नहीं सोचना है आपको, इन दोनों अच्छा के बारे सर। में सिर्फ सोचना है। हाँ जी इन हाँ दोनों से जी जो सर। बचेगा इसके लिए तो इसको अरेंज करने का मेथड एक ही मेथड है ना, जो भी आ जाए चल जाएगा। बस क्या होना चाहिए, इन दोनों को आपको सोचना है, यस ठीक सर। है। अब आप देखो इस जगह पर क्या क्या ले सकते हो, ये लार्जर अगर है तो इस जगह 2 पर से आप ले लेकर 6 सकते हो तक सारे नंबर। 2, 3, 4, 5, 6 ले सकते हो। और इस बिल्कुल। जगह पर क्या ले सकते हो, 1 2 3 1, 4 2, 5। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हो। यस तब इन सर। नंबर्स को आप इसमें लेके देखो। अब जैसे यहाँ लिखा गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। 6 माइनस 3 क्या होगा, 3। 3 हो जाएगा। 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो सर 6 माइनस आई ग्रेट स्मॉलर नंबर है हमारा। हाँ जी। तो सर सर और या उसकी वैल्यू तो 5 कभी होगी ही नहीं। क्या चीज, आई अगर हमारा 5 तक ही है आप इधर भी तो देखोगे, आप जो इधर ले रहे हो वो इधर भी तो देखोगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों आ रहा है यहाँ पे? दोनों को नहीं ये सेटिस्फाई करना चाहिए। आई की वैल्यू अगर 5 यहाँ ले रहे हो तो आई की वैल्यू 5 यहाँ भी लोगे। आई की वैल्यू अगर ये कंप्लीट अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू 1 लिए हो और 1 Yes. लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो Zero. जाएगा।
तो 0 तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सर ये i-1 कहाँ से आया? यही तो बोल रहा हूँ, आई की वैल्यू 2 लेंगे तब तो लेंगे, क्योंकि देखो आई आपका लार्जर नंबर है तो ये कम से कम 2 होगा, 1 तो लिया नहीं जा सकता है। आप क्या किए, यस सर। टोटल जो आपके पास है उससे एक ज्यादा ले लिए, तो i-1 मतलब यहाँ आप क्या क्या रख सकते हो, 2 3 4 5, देखो रखने को 6 भी रख सकते हो, लेकिन जब 6 रखते हो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ सर में आई। बात तो समझ में आ रही है कि 2 और 5 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ i-1 और 6 - i ये। अब मैं ये बता रहा हूँ, सुनो। अब जैसे आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट को भरने का तरीका हो गया i-1, सर तो आवाज उसी कट तरह रही है से आप। थर्ड को भरने का तरीका क्या होगा। हेलो, सर आवाज कट गई। हाँ अब आ जाइए। सर ब्रेक हो रही है अभी भी। हेलो, हाँ जी सर अब आ गई। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे पहले को अरेंज करने का तरीका i-1 है, और क्या है कि अगर यहाँ आप कोई भी टर्म रखते हो तो ये तो फिक्स है ना, इस कारण से ये 2 से 5 के बीच जा रहा है। अब यहाँ 6 - i, ये 0 तो होना नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। यस अगर सर। आप फर्स्ट को i-1 मेथड से चूज कर रहे हो तो थर्ड को अच्छा आप 6 - i मेथड से ही चूज करोगे, ताकि ये 0 ना हो पाए। अच्छा, अगर तो 0 होता है तो नंबर यहाँ ऑफ क्या वेज बोलोगे, ऑफ चूजिंग है क्या? यही तो है अच्छा सर, मुझे लगा ये नंबर्स हैं। यार, लग जाता है यही दिक्कत हो जाती है, इसीलिए इतना बोलना पड़ता है। देखो प्रोबेबिलिटी या पीएनसी जो है एक तो ऐसा ही चैप्टर है, आपके हिसाब से कुछ अलग सोचा जाता है, मेरे हिसाब से कुछ अलग सोचा जाता है, और जो ऑथर होता है बुक का उसके हिसाब से कुछ अलग सोचा जा रहा है। ये आप यस अक्सर आप सर। देखोगे प्रोबेबिलिटी या पीएनसी के केस में, लेकिन हम लोग को कंक्रीट लेना है। अब क्या है कि ये इंग्लिश में दिया जाता है, हिंदी में भी दिया जाए तो हिंदी एक ही सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं थोड़ा सा डिफर डिफर होने पर। इस चक्कर में चैप्टर थोड़ा सा लॉजिकली टफ माना जाता है, लॉजिकली, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। बात समझ में आई। यस सर। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़े हैं। सर इसे सॉल्व करके कैसे आएगा आंसर? हाँ तो हो गया, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस कर दो, देख लो। इसको नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। ई ऑफ ई इक्वल टू क्या मिला आपको, सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 2 to 5 i-1 इंटू 6 - i बाय 216, ये मिला है ना। अब ये वैल्यू पुट करो तो ये क्या मिलेगा, 2 - 1 मतलब 1 इंटू 4 प्लस 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 4 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 4 रखेंगे तो आ गया 5 रखेंगे 5, सॉरी 5 - 1 4 इंटू 6 - 4 2, सॉरी 6 - 5 1 बाय 216, मतलब क्या आ गया 4 + 6 10 + 6 16 + 4 20, 20/260। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। 10/108, 5/54। 5/54 कर सकते हो। ठीक है, अब जो इसमें बताया गया है आगे, वो बताया गया है इस तरह से हम लोग यूज करते हैं लॉजिकल मीनिंग ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया गया वो ये है, लॉजिकल मीनिंग ऑफ। जानते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे पूछा जाता है, समझ गए।
इसीलिए डिस्कशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इस तरह के क्वेश्चन पर ज्यादा प्रैक्टिस करना। ये मिसलेनियस के अंतर्गत आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, जो ना 11th में दिखता है ना 12 में दिखता है और पूछ दिया जाता है। तो लॉजिकली आपको स्ट्रांग होना है और कुछ नहीं। लॉजिकल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्या क्या लिख देता हूँ। सॉरी, प्रिंसिपल्स related to सेट थ्योरी। देखो सेट थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान है, जब तक पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों को डेवलप होने में। एक्चुअल में क्या है कि जो एंड एंड और का जो कॉन्सेप्ट आया था प्रोबेबिलिटी, सॉरी कहते प्रोबेबिलिटी पीएनसी में, वो आया था वहीं से, सेट थ्योरी से, है कि नहीं? To select either this or this, we have to add this principle of addition, and we select both the things, then we have to use multiplication theorem। This fundamental theorem of principle जो आया था पीएनसी के अंतर्गत, वो एक्चुअल में आया था सेट थ्योरी से ही, जिसमें आपने देखा था कि ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं? ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का सेंस दे रहा है ए और बी, और टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी। लॉजिकली अगर आप इस चीज को समझ जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है, मैं ये पेज लास्ट कर देता हूँ, आप चिंता मत करो, इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फॉर डिटेल्स, सॉरी फॉर टू इवेंट्स, डिटेल्स कहते हैं, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, है कि नहीं? P of A union B means what? P of A union B means probability of occurrence of events A or B, or you can say probability of occurrence of events, occurrence of at least one of A और B। ठीक है बच्चे, अब इसी का जब एग्जाम्पल आप लेते हो, अब इसका फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो ये क्या लिख देते हो? P of A union B to P of A चलो यहाँ लिख देता हूँ, P of A आसपास क्या बोलने दे रहा है, P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। ठीक है बच्चे, इसी में आप कहते हो कि अगर ये डिसजॉइंट होता है तो क्या हो जाता है? P of A and B equals to P। चलो रहने देते हैं इसको, आज इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा तो ये 11th का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आएंगे 12 में, और फिर वहां से आपका प्रोबेबिलिटी का मेन सोर्स और मेन
मजा जो करते हो प्रोबेबिलिटी का वो शुरू होगा। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, और कहीं को डाउट होता है तो जरूर पूछिए। मैं आपको अपना नंबर सेंड कर चुका हूँ। किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज शेयर इट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। Not certain, but I must try. I must try to solve your all those problems which you will get. Okay? Till Okay, then, sir. goodbye, good night. Good night, sir. We'll meet Good night, again sir. tomorrow at the same time. Okay? Good night, all of you.